Hello, friends, and welcome to yet another episode of Pause Talk. And today we have with us Dr. Usha Gupta. Welcome, Dr. Usha. हेलो मोनिका, कैसे हैं आप? I'm all well. Hope you're doing well too. Yes. So, Same here. Dr. Usha is a gynecologist, and now she is a parenting coach. And you have guessed it right. So, that is the whole Pause Talk about. That what has brought her to being a parenting coach today. So I will now request Dr. Usha to introduce herself. Thank you, Monica, for giving me this privilege to come on your platform. So, as you said, my name is Usha, and I'm a gynecologist and now a parenting coach. I have served state government for over 30 years. And after serving for those how many years, I felt like there is another thing in my life which I want to do. अब मैं ज्यादा लोगों तक रीच करना चाहती हूँ, उन्हें सिर्फ मेडिसिन से हेल्प नहीं करना चाहती, उन्हें हैप्पी फैमिली भी बनाना चाहती हूँ। इसलिए मैंने पेरेंटिंग कोचिंग को चुना और मैं आज आपके सामने एक डेडिकेटेड पेरेंटिंग कोच के रूप में हूँ। Superb, superb. That's so awesome. Like if I go to my own story, I really wanted to be a doctor, right? And obviously, in those times, everybody, any girl would want to be a gynecologist because that was the chosen field. They will not become an orthopedic surgeon क्योंकि उनको हड्डियां जोड़ना तोड़ने में मुश्किल हो जाएगी because they don't have that kind of a strength. Yes. They used to tell. Yeah. So it is better always to become a gynecologist or at the most become a pediatrician because that is a very safe kind of a Yes. stream. Stream. But we couldn't do that, and I became a kind of a parenting coach, and I started to have a lot of coaching done, and I became a parenting coach. And now we have a doctor who has changed herself to becoming a parenting coach. Nice to meet you. Another parenting coach. So this is so kind of a different situation that sometimes we feel that okay, I was not able to be like that, and then there is somebody when you meet like this and you say, okay, whatever you have done is fine. No, Yes. so I can give a pat on my back that whatever I've done is fine today. I will now request Dr. Usha to please share her professional journey with us, that how all this happened, like how did she change from a gynecologist to a parenting coach. Before we go into and delve into the pause story, just a kind of a brief on her professional life. So I got admission in medical college in late 80s और MBBS as usual हो गया। फाइनल एग्जाम्स के तुरंत बाद मेरे छोटे ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ और दैट वाज सो सीवियर कि वो बेड रिडन हो गया फॉर हिज एंटायर लाइफ। तो उस समय मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाई क्योंकि फोकस वाज टू टेक केयर ऑफ हिम ओनली। फिर इवेंचुअली शादी हुई, बिटिया हो गई, लेकिन वो एक कीड़ा था कि पोस्ट ग्रेजुएशन तो करना ही है। सो आई टुक दैट स्टेप और मैंने प्रिपेयर किया और गायनी ऑप्ट किया और गायनिकोलॉजिस्ट बन गई। देन आई सर्व्ड फॉर 3-4 years in a very remote area. Okay. जहाँ की बहुत चैलेंजिंग रोल होता था क्योंकि आई वॉज द ओनली गायनिकोलॉजिस्ट इन द गवर्नमेंट सेक्टर। तो कई बार ऐसा होता था कि रात में लाइक एक इंसिडेंस की दिसंबर की ठंडी कड़कड़ाती रात जहां 10 फीट दूर तक का भी हमें दिखाई नहीं दे रहा था ड्यू टू फोग, और मुझे 7 times कॉल अटेंड करनी पड़ी। Oh my God. क्योंकि कोई और प्राइवेट हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं होता ऐसे समय पे जब absolutely डेज होते हैं। It is the government doctors who have to really take the burn. तो 7 times I went to the emergency calls. मेरी डॉटर उस समय लगभग 5-6 साल की थी और उसे घर पे अकेला नहीं छोड़ सकते। आई कैन नॉट गो, कुड नॉट गो अलोन। तो मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए ऑल द 7 times. माय डॉटर वाज स्लीपिंग इन कार. सो दोस टाइप ऑफ चैलेंजेस आई हैड फेस्ड। फिर ये था कि चूंकि आई वाज द ओनली डॉक्टर तो मुझे घर पे भी पेशेंट्स देखने पड़ते थे। मैं अपनी बिटिया को थोड़ा समय कम दे पाती थी उस समय। देन आई गॉट ट्रांसफर टू अ बिग सिटी और वहां भी अगेन गवर्नमेंट डॉक्टर हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अलॉन्ग विद पेशेंट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी आपको करने पड़ते हैं, बहुत सारे रिपोर्टिंग के काम आपको करने पड़ते हैं। राइट। आप घर आने के लिए घर पहुंचे हैं और आपको कॉल आ जाती है कि मैम वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कोई एमएलसी है, लीगल केस है,
आई हैव टू गो बैक, और मुझे नहीं पता होता तो कब मैं वापस घर लौटूंगी। राइट। इस तरह से जर्नी चलती रही। बिटिया साथ में बड़ी होती रही। हस्बैंड भी डॉक्टर हैं तो उनका भी बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। वो फिजिशियन है, एमडी मेडिसिन, तो उनका भी बहुत इमरजेंसीज एंड वो सब रहता है। हम्म। फिर इन कोविड सेकेंड फेज मेरी छोटी सिस्टर हमसे जुदा हो गई। हम्म। तब मुझे लगा कि मेडिकल मैंने बहुत कर लिया है, मुझे अब बच्चों को, लाइक उसके भी दो बच्चे थे जिन्हें मुझे देखना था, मेरी खुद की डॉटर अलग सिटी में काम कर रही थी, मेरा घर था, मेरा जॉब था। हम्म। मुझे लगा मैंने अपनी डिग्री को, अपनी पढ़ाई को जस्टिफेबल टाइम तक सर्व करके कर दिया है पूरा। अब आई हैव टू वेंचर ऑन समथिंग एल्स। और राइट। पेरेंटिंग एक सब्जेक्ट था जो मुझे, जब मेरी बिटिया बड़ी हो रही थी तब बहुत चैलेंजेस आए थे। राइट। मेरे पेशेंट्स, हजारों लाखों पेशेंट्स जिनको मैंने अब तक ट्रीट किया, उनकी फैमिलीज में जब बच्चों को यस। लेके कोई चैलेंजेस आते थे तो वो मेरे साथ शेयर करते थे। मैं उन्हें अपनी जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस था वो शेयर करती थी और उन्हें उससे रिजल्ट्स मिलते थे। तो ये सब मेरे राइट। पास था, तो मुझे लगा दिस राइट। इज द फील्ड, और जो कि रिक्वायरमेंट भी है आज। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो आई टुक वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम माई जॉब। हम्म। अब पूरी तरह से फुल टाइम डेडिकेटेड पेरेंटिंग कोच की तरह Oh मैं my काम कर। God. Oh my God. Superb, superb. This is a true journey of a person who really want to serve the people around them in whichever way they want. Thank you so much for being what you are, Dr. Usha. So now that you have already told us about your story and also about how it all happened, but then taking that pause, and probably you would have had a different kind of pauses initially, also, probably you when your daughter was born and when you shifted from a small city to a bigger city. Yes. Every time you would have taken a small pause to reflect, should I go ahead or should I not? Should I be here or should I not? So every time you would get a call, you always had that one right also to say, okay, no, I'm not coming because probably I cannot come. My daughter is small, or probably she's not well. You would have always had that choice also, and that would have been a pause to take which kind of decision you want to take. So please tell us about small and the big pause of your life. So first was when that was my first posting, and the first day when I joined, and that Hmm. was a very remote village. और मुझे जाते ही पता लगा कि मेरे को एक पोस्टमार्टम करना है। Oof. A lady who did suicide. Hmm. मुझे लगा मैं कहाँ आ गई, मतलब मुझे लाइक I मैं गई know. थी लोगों को ट्रीट करने और वो सब, और दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ माय Right. Right. जॉब। Hmm. पर ठीक है, किया, एंड आई कंटिन्यूड माय जर्नी। This second pause came when one day my daughter, when she was in class 2, came to Hmm. us Hmm. and said, पापा मम्मा मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। Yeah. देन आई रियलाइज कि हम उसे बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं। Hmm. Hmm. लाइक उसे गार्डन भी भेजना पड़ता था तो मुझे अपनी हाउस हेल्प के साथ भेजना पड़ता था। Hmm. किसी मेले में जाने का मन है मान लो, तो वो भी उसको हाउस हेल्प के साथ भेजना पड़ता था। Absolutely. Absolutely. दैट डे आई थिंक अबाउट कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। Right. एंड आई डिसाइडेड कि एज सुन एज आई वुड गेट द अपॉर्चुनिटी, मैं घर पे पेशेंट देखना बंद कर दूं। Hmm. गवर्नमेंट में मेरा जॉब है, लोगों को सर्व करना मेरा काम है, वो मैं वहां रह के भी कर सकती हूँ। Right. 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 एंड जब आप कुछ डिसाइड करते हैं तो गॉड आपकी हेल्प करता है। आफ्टर Absolutely. अ That's a very ईयर, big point, the very valid point, actually, Usha, because we have to have that intention. Unless we have that intention, तो मैं बहुत ले शब्दों में मैं क्या बोलती हूँ कि जब तक हम भगवान को एप्लीकेशन नहीं देंगे वो मंजूर कैसे होगी। वो मंजूर कैसे करेगा? तो क्योंकि मैंने हम उसे एप्लीकेशन ही नहीं देते हैं तो फिर वो वैसी रह जाती है फाइलों के नीचे चक्कर में, क्योंकि हम इंटेंशन ही नहीं देते हैं तो वो कभी पूरी नहीं बिल्कुल, होती है। तो मैंने उसे भगवान पे एप्लीकेशन लगाई कि मुझे अपनी बच्ची को टाइम देना है, और मुझे वो अपॉर्चुनिटी वहां छोटी, क्योंकि मैं उस छोटी जगह पे थी, वहां कोई और उनके पास ऑप्शंस नहीं था पेशेंट्स के पास, तो आई कैन नॉट हम्म। डिनाई देम कि राइट। मैं तुम्हें नहीं देखूंगी। राइट। तो वो एक साल के बाद मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बिग सिटी में ट्रांसफर हो गया हम लोग का। हम्म। एंड वहां मैंने अपने पेशेंट को, जब भी वो मुझसे पूछते भी थे हॉस्पिटल में, मैं उन्हें कहती थी मैं 99% आपको हॉस्पिटल में मिलूंगी, घर पे हम्म। मिलने के चांस सिर्फ 50% है मेरे। और राइट। that was the first time when that pause came in my life. वाओ। हम्म। Second pause came because I have only one daughter.
तो वो अपने सिबलिंग की डिमांड करने लगी कि मैं किसके साथ खेलूं, मैं किसके साथ एक्टिविटीज करने जाऊं, मैं Yes, किसके साथ yes, झगड़ा करूं। मतलब यू yes, कैन yes. नॉट इमेजिन Of कि क्या course, of डिमांड हो course. सकती है बच्चों की। Absolutely. No, no, I know for sure for that because even I got my second child very late when my son started to demand, and the teachers used to tell that he feels so lonely when he sees his own peer group, his friends, and they have Yeah. little siblings, and he says, because I was doing my PhD at that time, so I didn't want to have a disruption in my PhD, so I also Yes. took a lot of time to get my second child. So I can understand very well. उस समय वो पॉज इस रूप में आया कि मेरे हस्बैंड और मैंने बैठ के बात की। मैंने कहा देखो, हम सेकंड चाइल्ड अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकते कि हमें उसे सिर्फ हाउस हेल्प के भरोसे नर्चर करना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों की ड्यूटीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते हम अनटिल अनलेस हम अपना 100% वहां दें। और एक Right, बच्चा भी 100% डिमांड करता है। तो एक right. नए जीव को इस दुनिया में लाएं और उसे हाउस हेल्प के भरोसे छोड़ दें, सर्वेंट्स के भरोसे छोड़ दें, दैट वाज नॉट अल्लाह, मतलब मेरे एथिक्स उसको अलाउ नहीं करते थे। Absolutely. देन हमने कुछ चेंजेस अपने अंदर लाए, लाइक मेरे हस्बैंड उससे अपनी ठीक है, थिंक ऑफ मी एज योर यंगर ब्रदर। तो वॉट एवर, लाइक ठीक है, रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन जो शैतानियां करनी होती है, जिस तरह की एक मस्ती छोटे ब्रदर के साथ या बड़े ब्रदर के साथ बच्चे सिबलिंग के साथ करते हैं, Hmm. उन्होंने थोड़ा सा मोर उसमें इंडल्ज होना शुरू किया। एंड आई स्टार्टेड टेकिंग पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज विच शी लाइक। Right. जैसे उसने बोला कि मुझे सेल्फ डिफेंस सीखना है Hmm. उसकी वेकेशंस में, तो आई स्टार्टेड गोइंग विद हर। एंड इवेंचुअली ये हुआ, मतलब ये एक बड़ी अच्छी चीज मेरी लाइफ में हुई कि उसकी वेकेशंस के बाद शी स्टॉप गोइंग टू दैट क्लासेस, दोस क्लासेस। पर मेरा जर्नी रहा जारी, और मैंने ताइक्वांडो में एनरोल कर लिया था खुद को। Wow. सो 4.5 साल की रेगुलर प्रैक्टिस के बाद मैंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट अचीव कर लिया। सो Wow. दैट्स हाउ आई बिकेम हर क्लोज टू सिबलिंग। उसने कहा मुझे Right. माउंटेनिंग एंड क्लाइंबिंग की क्लासेस करनी है, आई वेंट विद हर। ऐसा नहीं है कि मुझे चैलेंजेस नहीं आए, मुझे अपने Hmm. हॉस्पिटल को भी देखना होता था। लाइक मेरा टाइम था सुबह 8 o'clock मुझे पहुंचना है। Hmm. आई चोज 5 o'clock इन द मॉर्निंग की क्लास, कि 5 to 6 Hmm. क्लास लेती थी मैं। देन आई केम टू होम, गेट रेडी फॉर हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाती थी। जब हम लोग माउंटेनिंग के लिए जाते थे तो अंदर सारा वो सब पहन के जाती थी कि भाई ठीक है, हॉस्पिटल में जाके सिर्फ वॉशरूम में जाके मुझे अपने चेंज करना होगा। सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस कह लीजिए, कुछ भी I कह लीजिए। know, I know, I know. सो दिस काइंड, बाय दिस, मतलब दैट वाज अ काइंड ऑफ पॉज, जहां मैंने कहा कि उसकी जो भी सिबलिंग को लेके कमी है उसके लाइफ में, Right, right. उसे जितना ज्यादा हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 100% कर पाए होंगे, बिल्कुल. बट जैसा कि वो अब बोलती है बड़ी होने के बाद, वो कहती है कि नहीं, आफ्टर दैट आई डिड नॉट फील लाइक कि मुझे कोई और चाहिए। आई एम हैप्पी कि आई एम द ओनली चाइल्ड एंड माय Yes. पेरेंट्स आर सो मच विद मी। Absolutely, अच्छे बुरे because they दिन में realize उन्होंने that you मुझे are दिया। getting the undivided love of the parents. Otherwise, it is a यस, divided love between two या, people. सो शी टोल्ड दिस मेनी टाइम्स। एंड द नेक्स्ट पॉज केम व्हेन माय सिस्टर passed away. She was younger to me, and it took me 1 whole year to Hmm. recover from that trauma. Hmm. Actually, her husband was in army and he was left this world 9 years ago. So now her Hmm. children were with Hmm. no parent. So although they are very brave and I can say very mature children, but it took me whole 1 hour to come out of that trauma. And I decided that time that to take care of those children, my own daughter, my home, I have to take a pause. I have served more than enough. 27 years are not less. Yes, So I yes. decided to take voluntary retirement from my job. And after that, I realized that I cannot sit Yes. at the home. Yeah, that is what happens actually. Yes. And parenting is very close to my heart as I nurtured my daughter, my sister's daughters, my relatives, and my patients, जिनके Hmm. बच्चों को मैंने हेल्प किया, जिनकी फैमिलीज को मैंने हेल्प किया उनके बच्चों को नर्चर करने में। तो मैंने इसको डीपली स्टडी करना शुरू किया कि Yeah, जो कुछ कमी किसी और को बताने में मेरे अंदर अभी है, अभी तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो सब स्ट्रक्चर्ड नहीं है मेरे पास। absolutely.
तो मैंने कुछ कोर्सेज किए, जैसे मैं एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कोच भी हूँ, मैंने उसको प्रैक्टिस किया, लाइफ कोचिंग सर्टिफिकेशन किया, बहुत सारी पेरेंटिंग्स पे बुक्स वगैरह पढ़ी, एंड नाउ एज ए पेरेंटिंग कोच आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। Wonderful story, wonderful story. I must say, Usha, and this is a reality of life, that how Yes, a woman has to be present for so many people around her. No, she cannot be one person who in one unidirection say कि नहीं, yes, मुझे सिर्फ काम करना है, मेरा फोकस सिर्फ काम पे है, और उसके अलावा जो आसपास होता रहे वो तो हो जाएगा कैसा भी, yes, पर मेरा काम तो सिर्फ काम है. Unlike men, like, because usually men, I'm not saying all the yes, men, yes, but yes, yes, usually men are so focused to just go out and earn do their that they best. so taking for granted their woman who is sitting at home or not sitting at home working But also, that she yes, will take care of the all the rest other of things. the family, बिल्कुल. right? But women have to, if she's working, then it is double, triple. She has to look after so So many things, many. Like she's a Durga, she's a Lakshmi, she's a Kali, she's everything, every all role she the, has to play. yes, Yeah, सारे रूप आ जाते हैं उसमें, एक ईश्वर के समझो या जो भी समझो, पर जो भी हर रूप में वो अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है उसको, कि वो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो जिम्मेवारियां हैं उसको पूरी उन्हें करनी. पूरा करे. Correct. So, and उसके that is साथ how your pause was so beautiful, that you shifted little gears from what you were doing. And what I want to highlight here is, Dr. Usha, that in that pause, especially the one which you became a sibling to your daughter, you were not regretting that I'm wasting my time with my daughter. I would have gone to my patients. But you were so present with your daughter that you started to participate yourself, and you yourself started to become that one person who is challenging her own limits, getting up at 5 o'clock and then going for this your own hospital never also. do. So accommodating everything in those 24 hours. Everybody has 24 hours. Yes. But how do you utilize the 24 hours? Then that is the time management which we all have to incorporate. So kudos to you, Dr. Usha, that you were able to bring out the true essence of each pause that you took, and how beautifully you have stated. Thank you, Wonderful. Farzia. So now Thank I will ask you that post the pause, like now that you are a parenting coach, and after that, every pause that you took, especially the one that now you are also a trekker, you're also a taekwondo black belt, how are you really taking all of this forward? मोनिका जी, सबसे पहली चीज है कि आपके अंदर उस काम को करने की डिजायर होनी चाहिए. Hmm. Like I was इन फर्म बिलीवर कि बच्चों को हम अपने लिए पैदा करते हैं, अपने जॉय के लिए, अपने प्लेजर के लिए पैदा करते हैं. तो दिस इज माय ड्यूटी टू Yes, टेक केयर ऑफ हर. absolutely. उसके लिए मुझे यदि, और मेरा एक दूसरा भी जरूरी काम था कि मैं पेशेंट्स को सर्व करूं. Absolutely. दैट वाज नॉट इंटायरली कि जो मुझे करना है. Right. अब उसके लिए कुछ बैलेंस लाइफ में लाना पड़ेगा, कुछ आपको स्ट्रेच भी Absolutely. करना पड़ेगा, खुद को बिल्कुल. डेफिनेटली स्ट्रेच करना पड़ेगा. और आपका कोई भी रोल हो, कोई भी एज हो, आपके लिए कोई बार नहीं होती. ये मैंने सीखा था एक वर्कशॉप में. एक मोटिवेशनल कोच की एक वर्कशॉप हुई थी 2 दिन की. मैंने वो अटेंड किया, और वहां एक सेंटेंस ने मेरी जिंदगी बदलने में बहुत अहम रोल प्ले किया. कि उन्होंने कहा कि कोई भी रोल, कोई भी एज, कोई भी जगह आपको कोई भी काम करने से नहीं रोक सकती, यदि किसी भी एक बंदे ने वो काम कभी भी लाइफ में किया है. और ऐसे तो Absolutely. हजारों एग्जाम्पल हमारी लाइफ में और हमारे आसपास हैं. Absolutely. And you are one example. Now that you have this pause talk, there will be so many people listening to your example, and they will say, ki I heard one pause talk and I got my whole entire life changed. I'm sure this is going So to this happen. is the only thing which is always with me, and I am always a learner. मैं हमेशा नई नई चीजें सीखने में, like I find fun, I find I find energy in learning things. तो चाहे वो स्कूबा डाइविंग हो, चाहे वो पैरासेलिंग हो, वो बिटिया के लिए तो कर ही रही थी मैं उसके साथ देने के लिए. तो लेकिन शायद कहीं ना कहीं मेरी भी हिडन डिजायर्स थी कि कुछ ना कुछ एडवेंचर लाइफ में होना चाहिए. Right, एंड वन right. मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर, कि जब हम कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं ना, अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, अपने Hmm. फियर्स को ओवरकम करते हैं, तो लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको एनर्जी Absolutely. मिलती है, आपको Absolutely. कॉन्फिडेंस मिलता है. Absolutely.
taking VRS from like my job was so lucrative, मेरे को इतना अच्छा सैलरी मिल रहा है, मेरे पास इतने पेशेंट्स हैं, मेरा इतना मान है, लाइक बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि क्या चाहिए लाइफ में आपको जो करेक्ट, आपने करेक्ट, छोड़ दिया, स्टिल करेक्ट। मतलब, है ना। पर मुझे ये लगता है कि शायद मैं ये सब इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मैंने वो सब एक्टिविटीज में भी अपने आप को, ठीक है एक क्षण आता है जब आपको डर लगता है, बस उस क्षण को यदि आप ओवरकम कर गए, बस that one moment if you're able to overcome, then everything यस, is fine. और वो भी ओवरकम करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसे नहीं बिल्कुल, होता। यदि अभी बिल्कुल। मैं चाहूं कि ऊपर 6 स्टोरी पे जाके जंप लगा दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए करेक्ट। आपने स्टेप बाय स्टेप कुछ काम किए होते हैं। यस, यस, आपने यस। पहले 1 मंजिल से या कहिए 10 फीट से जंप किया होता है, तो आप 20 फीट से देन 30 फीट से वेरी कर ट्रू, सकते हैं। वेरी ट्रू। तो दिस इज ए जर्नी। Yes. Absolutely. So this is how I'm so happy that you are able to share all of your adventurous stories with our viewers, that age is not a limit. Age can never be a hindrance for any of हिंड्रेंस, your dreams to come true. यस, एंड So नॉट योर एनी रोल, लाइक यदि आप पेरेंट है तो आप ये नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है, एज ए करेक्ट है। पेरेंट भी आप ऐसा कर सकते हो, आप डॉक्टर हो इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते, नो, यू कैन डू। लाइक आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मैं अपना ताइक्वांडो का प्रैक्टिस करती थी तो मेरे कंपेनियंस कौन थे, 14 years ओल्ड बच्चे, Yes, 16 years, 12 years। right. और मुझे हमेशा उनके साथ एक कंपटीशन भी लगता था, और उनके लिए मैं एक इंस्पिरेशन का भी काम करती थी कि दीदी Absolutely. ऐसा कर रहे हैं तो वी, मतलब वी कैन डू। और मुझे Actually, लगता था ये कर रहे हैं तो मैं हर दिन अपने आप को एक नया हाँ, उसमें पाती थी, लाइक चैलेंज में, कि अच्छा इन्होंने बिल्कुल, 10 किए सूर्य नमस्कार आज, मैं भी आज कम से कम 8 तक तो पहुंच के दिखाती बिल्कुल, बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। दैट ऑल्सो गिव्स यू एनर्जी कि Absolutely. आपकी So it is very yes, infectious, no? It is very yeah, infectious, that inspiration is actually very, very infectious when we are around people who are positive, who are more enthusiastic in life, who are happy in life. When we are surrounded by such kind of people, we automatically get that kind of a positivity and that kind of enthusiasm to live life to the fullest. And that is what your pauses have done to you. And now that you are a parenting coach, you are able to tell the parents that how, if you have one child, you don't have to just bear just to all the give, tantrums of the child. yeah, yeah, Because usually now people are catering to only one child because they don't want responsibility more. अगर कैरियर वाली वुमन है तो बोलती है एक बार हो गया ना छुट्टी लेना, अब आगे क्यों लूं मैं बार बार छुट्टी लेना. One is enough. I've proved to the society that I can be a mother, and that's all. yeah. One time is okay for me. And they start to pamper the child in a way that child gets spoiled, or the child feels very lonely. So how to balance that, you can very well tell from your own experience as a parent Definitely. of a single child. So I'm sure your parenting coach journey is going really wonderful, and thank you so much for being here on this post talk with your wonderful and very encouraging life story. I would now request you to share one small message for our audience. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, किसी भी काम को करते समय ये मत सोचो कि मैं कितनी बड़ी हूं, मेरा रोल क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ या रहती हूँ। यदि आपको लगता है कि ये आप किसी और के लिए कर रहे हो, खुद के लिए नहीं कर रहे हो, तब तो आपको और भी ज्यादा एनर्जी ऊपर से भी इस इनफाइनाइट वर्ल्ड से भी मिलती है। पर बिल्कुल. यदि हाँ आप अपने लिए भी करते हो, और वो आपकी ग्रोथ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, किसी और को हार्म नहीं कर रहा है, Right. तो आपको वो करना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेच लाइफ में करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। यदि आप सोचें कि अपना कंफर्ट जोन में रहना है, तो यू कैन नॉट अचीव Actually. एनीथिंग। टू ग्रो, always be a learner, Right. always be open to do experiments, and Right. spread love and Super. happiness. The only Super. thing which I want to share with my audience, कि हमेशा हमेशा सिर्फ इस बात पे ध्यान दें कि कैसे मैं अपने किसी भी काम से Hmm. किसी और को खुशी दे सकता हूँ, चाहे वो आपके Right. बच्चे हैं, आपका स्पाउस है, आपकी कम्युनिटी है, या कोई भी व्यक्ति। और तब आपको Super. इमेंस एनर्जी मिलती है, आपके लिए कोई चीज हिंड्रेंस नहीं रहती, कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाती। Wonderful. So wonderful. Such a beautiful message from Dr. Usha, that you can do once you have decided. So it is only that decision, that one decision that you have to take for your own happiness, for your own uh,
people's happiness, for your community's happiness. And most important thing is that when you decide, you have to expand your life. And No, you you have have to to take come out. actions. Yeah, you have to come One out more of your thing I comfort zone. want to add कि सिर्फ डिसीजन से जिंदगी नहीं बदलती, एक्शन लेने से बदलती है. That's what. First you Once you decide, decide, take actions. take action, because that action is only going to manifest the decision that you have taken. Taken. Right? Otherwise, there And is no. otherwise it is of no use. Yeah. So first decide and then take action. And Actions. that is what first action is, to expand your life, to really Yes. embrace things which are happening, come out of your comfort zone, and Ah. then you can live your life with lot of passion. As you want. Thank you so much, Dr. Usha. It was so wonderful having you here. I can now tell all the women who are going to listen to this pause story today that if you resonate with this story and you have something similar to share with the world, you can be my next guest here, and you can just message me and I will reach out to you, and we can have one beautiful conversation here on Pause Talk. So thank you so much, Usha ji. थैंक यू Namaste. मोनिका, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करने का मौका दिया आपकी ऑडियंस के साथ. और मैं चाहूंगी कि वो सब लोग भी ऐसी लाइफ जी पाएं जैसी वो चाहते हैं, अपनी ड्रीम लाइफ जी पाएं. बस कहीं कहीं से टिट्स बिट्स उन्हें यदि मिल जाएं, इंस्पायर कर दे उन्हें, तो उनकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. आप जैसे लोग इस मिशन पे लगे हैं, इसे देखकर बड़ा अच्छा लगता है. एंड आई होप आपकी टॉक्स, पॉज टॉक्स बहुत लोगों तक पहुंचे, मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचे, ताकि वो लोग भी इंस्पायर हो सके उन स्टोरीज से जिन्हें Yes. आप प्लेटफॉर्म पर लेकर आती हैं. Thank you so much for your wishes. Thank you. Namaste.